وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے وجود کو حاصل کر کے اسے کیا لگتا ہے میرے دل پہ بھی قبضہ جما لے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ ماہم خان اسے بتائے گی کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ اس وقت شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا، مگر اس نے کبھی بھی ایسے شخص کے لیے شادی کے خواب نہیں دیکھے تھے جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ مہروز کا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں کی طرف ماہم نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور اس سب کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مہروز ایک ظالم، سائیکو، پاگل اور خود پسند انسان تھا جس نے اپنے علاوہ کبھی کسی کو خاطر میں ہی نہیں لایا تھا، اپنے علاوہ جسے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ غریبوں کا مذاق اڑانا اور ان کے لیے تکلیف بھرے جملے کسنا، یہی مہروز کے پسندیدہ مشغلوں میں سے تھا۔ ماہم جو ہمیشہ سے ہی ایک نرم دل کی مالک لڑکی تھی اور جس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ کسی کی تکلیف دیکھ کر ہی تڑپ اٹھتی تھی، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی تھی جب تک وہ اگلے انسان کی تکلیف دور نہ کر دے۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس کا نکاح مہروز کے ساتھ طے ہو رہا ہے تو اس نے بہت واویلا مچایا، لیکن اس کے بابا سائی نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے بابا سائی نے اسے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اگر اس نے ان کی روایات کے خلاف جانے کی کوشش بھی کی تو وہ اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کریں گے۔ ماہم کے لیے یہ سوچ ہی بہت تکلیف دہ تھی کہ ایک پرائے شخص کے لیے اس کے بابا سائی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے، اور پھر اس کے بعد ماہم کے دل میں مہروز کے لیے نفرت مزید پختہ ہوتی گئی۔ اس کا مقصد اب صرف اور صرف مہروز کو تکلیف پہنچانا تھا اور اسے ساری زندگی کے لیے اس فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کرنا تھا۔ اس نے چوڑیاں اتار کر زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جھمکے اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کر جیسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھاڑ سے کھلا۔ مہروز چہرے پر مسکراہٹ سجائے دل میں خوشیاں بھرے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے تمیز نہیں سکھائی کہ جب تک شوہر کمرے میں نہ آئے تب تک عورت اپنا سنگھار نہیں اتار سکتی؟ تمہیں شوہر مانتا کون ہے؟ ماہم نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے، تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میرے پاس گواہان موجود ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے جو کہ نکاح نامے کی صورت میں پڑا ہے میری جیب میں۔ مہروز نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ وہ بہت غور سے ماہم کو سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ عورت بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عورت تو پہلے دن سے ہی مہروز خان کے دل میں اتر کر اس کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ تم ابھی بھی بہت حسین لگ رہی ہو اور اسی لیے میں تمہاری یہ گستاخی معاف کرتا ہوں۔ اس نے ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آنے کی کوشش کی ورنہ جان سے مار دوں گی میں تمہیں، ماہم نے گراتے ہوئے کہا۔ اب کہ مہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اس کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ میں تمہاری بدتمیزی کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں، اور ایک بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، مجھے اس طرح کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں۔ تم میری محبت ہو، پسند ہو میری، اسی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا، مگر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھنا شروع ہو جاؤ۔ ناچنا شروع کر دو۔ ہر کسی کے صبر کی انتہا ہوتی ہے، اور جس دن میری یہ انتہا ختم ہوئی اس دن میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اپنی محبت کو ایک طرف رکھ کر اس دن میں تمہیں صرف اور صرف اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھا دوں گا۔ تم جیسے شخص سے مجھے یہی امید ہے۔ تم جیسا شخص زیادہ دیر تک اپنے اوپر جھوٹی محبت کا لبادہ اوڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم جیسے شخص کے دل میں صرف اور صرف نفرت رچی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ ماہم نے انگلی اٹھائی اور اسے کہنے لگی، میں تمہاری نیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ شادی صرف اور صرف اس لیے کی ہے تاکہ تم میری جائیداد۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، مہروز کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو تو کس طرح کی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں میری پیاری بیوی نے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے تمہاری جائیداد؟ اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی اور دوبارہ ہنسنے لگا۔ تو ماہم بیگم، میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، آپ کی ساری جائیداد میں نے آپ کے نام لکھوا دی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے بابا سائی نے جو 1 کروڑ حق مہر لکھوایا تھا وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کیا جا چکا ہے۔ مجھے آپ کی جائیداد یا دولت سے ذرا بھی غرض نہیں، کیونکہ میرے باپ نے میرے لیے اتنا کچھ چھوڑا ہوا ہے
कि मुझे मज़ीद किसी चीज़ की ना तो चाह है और ना तमन्ना, तो फिर तुम अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे पास आए हो। माहम ने अब इंतहा कर दी थी। महरोज़ के माथे पर बल पड़े। वो तेज़ी से माहम के पास आते हुए घुर्राया और बोला, अगर मैंने ऐसा करना होता तो पहले ही तुम्हें अगवा करके अपना मकसद पूरा कर लेता। तुम्हें इज्जत देकर तुमसे शादी नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अभी भी यही बात कह रहा हूँ। चलो अब मज़ीद बातें छोड़ो, अच्छी बीवी की तरह अपने फ़राइज़ अंजाम दो। हरगिज़ भी नहीं। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। ये कहकर उसने माहम का बाजू पकड़ा। माहम ने एक झटके से अपना बाजू उससे छुड़वाया और पीछे की तरफ उसे धक्का देते हुए बोली, अगर तुम मेरे पास भी आए ना, बता रही हूँ मैं तुम्हें, शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी और सबको बताऊंगी कि मेरा शोहर मेरी इज्जत लूट रहा है। ये कहकर वो फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर माहम की आंखों में देखते हुए बोला, कमन बेगम, बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो और तुम्हारी इन छोटी मोटी मासूम धमकियों से मैं डरने वाला भी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम पर मज़ीद प्यार आ रहा है और मैं बस किसी तरह से तुम्हें अपनी मोहब्बत के जहान में ले जाना चाहता हूँ। वो उसके पास आया। इससे पहले कि वो उसका हाथ थामता, माम दोबारा से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। पहले तो महरोज़ हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। इतना हंसा कि ज़मीन पर लेट गया। माहम को उसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा। महरोज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माहम ने दोबारा से उसे धमकी दी थी। महरोज़ ने उसे कहा, चलो चिल्लाओ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। वो उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। माहम की छोटी सी नाक गुस्से में सुर्ख हो रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में पानी आ गया। तुम्हें एक और बात बताता चलूं कि ये कमरा भी साउंड प्रूफ है। तुम्हारी आवाज़ मेरे अलावा किसी को भी सुनाई नहीं देगी। तुम तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम जिस अंदाज में भी बोलो मुझे अच्छी लगती हो। चाहे पूरी रात तुम मेरे कानों में इसी तरह से चिल्ला चिल्ला कर ये आवाज़ें पहुंचाती रहो, मैं खुशी से तुम्हारे चेहरे को देखता रहूँगा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं शदीद नफ़रत करती हूँ तुमसे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही मैं तुम्हें देखना बर्दाश्त करती हूँ। मेरे दिल में कोई और। इससे पहले कि वो अपने मुंह से एक और लफ्ज़ अदा करती, महरोज़ किसी शिकारी की तरह उस पर झपटा, उसके बाजुओं को ज़ोर से पकड़कर उसकी आंखों में देख घुर्राते हुए बोला, खबरदार जो तुमने कभी इस तरह की बात दोबारा अपने मुंह से निकालने की कोशिश भी की, वरना अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये धमकियाँ सुनकर डर जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। माहम खान अपने बाप के अलावा किसी से भी नहीं डरती। अब माहम खान अपने बाप के अलावा अपने शोहर से भी डरा करेगी। वो दोबारा उसके करीब से निकलने लगी थी कि उसने दोबारा माहम की कलाई पकड़ी और उसकी शारक पर अपने लब रखते हुए बोला, तुम काफ़ी देर से मेरे सामने उड़ती फिर रही हो, मुझे धमकियाँ दे रही हो कि मैं तुम्हारी जान निकालूंगी। अब तुम देखो कि महरोज़ लगारी कैसे तुम्हारी जान निकालता है। अब बस खामोशी से देखना और फिर सीखना, क्योंकि बाद में तुम्हारा इम्तहान भी लिया जाएगा। महरोज़ ने उसे एक आंख मारते हुए कहा और फिर उसे अपने बाजुओं में उठाया। माहम खान ने एहतजाज कर रही थी और खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महरोज़ लगारी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। और फिर वो रात माहम के लाख एहतजाज के बावजूद उस इंसान ने माहम पर अपनी मोहब्बत की छाप लगा कर छोड़ा था उसे। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा माहम करीब ही सो रही थी। उसकी आंखें सारी रात रोने की वजह से सूजी हुई थी। उसने माहम का बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वो एक कटी ढाल की तरह उसके सीने पर आ गिरी। इस बार माहम ने एहतजाज नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कोई फ़ायदा नहीं। महरोज़ लगारी ये समझ रहा था कि वो उससे राज़ी हो चुकी है। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना दूंगी, तुम्हें इतनी तकलीफ़ें पहुँचाऊँगी कि तुम मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें कभी मौत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उस वक्त छोड़ जाऊँगी जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं तुम्हें इस कदर परेशान करूँगी कि तुम्हारा मोहब्बत पर से यकीन ही उठ जाएगा और तुम दोबारा कभी भी किसी को मोहब्बत की नज़र से देख तक ना पाओगे। ये माहम खान का महरोज़ लगारी से वादा है। एक लम्हे के लिए तो महरोज़ लगारी का दिल धड़का था। दूसरे लम्हे जब उसने उस छोटी सी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। इस बार भी उसने माहम की बातों को मजाक में ले लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अच्छा, तो ये सब करोगी तुम? महरोज़ ने उसका मजाक उड़ाते कहा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। माहम ने एक झटके से सर उठाया और वॉशरूम की तरफ चल दी। वो शावर के नीचे खड़ी
وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ مہروز خان، مہروز لغاری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ اپنے بازو اور ہاتھوں کو زور زور سے رگڑ رہی تھی، یوں جیسے وہ مہروز کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گی مہروز، اور بتاؤں گی تمہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی سزا کتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ نہا کر نکلی تھی کہ مہروز کی ماں کمرے میں چلی آئی۔ وہ ماہم کی طرف بڑھی اور اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری بیٹی تو مزید حسین لگ رہی ہے۔ مہروز اس وقت اپنے بستر پر لیٹا تھا، یقیناً وہ دوبارہ سے سو چکا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو ساری رات جگا کر رکھا تھا، عالیہ بیگم نے شرارتاً کہا۔ ماہم کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اب وہ عالیہ بیگم کو کیا بتاتی کہ جگانے والا کون تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں آپ کے پاس ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ دراصل ہماری حویلی کا ایک رواج ہے، شوہر اور بیوی ایک ساتھ ہی کھانے کی ٹیبل پر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اکٹھے ہی ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آتے ہیں۔ جب مہروز اٹھ جائے تو آپ اس کے ساتھ ہی نیچے آ جائیے گا، یا آپ مناسب سمجھیں تو مہروز کو بھی اٹھا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے مہروز کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے۔ ان کی بات سن کر ماہم نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، ماہم پراسرار انداز میں مسکرانے لگی۔ اس نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر نامدار پر ڈالی اور دوسرے ہی لمحے تیار ہونے لگی۔ وہ اب اکیلی ہی نیچے جانا چاہتی تھی۔ جب وہ کھانے کی ٹیبل پر گئی تو سبھی حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا سائی نے ماہم سے پوچھا کہ مہروز کہاں ہے اور تم اکیلی کیوں چلی آئی؟ جی وہ مہروز کمرے میں سو رہے ہیں، میں انہیں ساتھ چلنے کے لیے بول چکی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ تم خود ہی اکیلی نیچے چلی جاؤ۔ انہوں نے مجھے زبردستی بھیجا ہے، میں خود نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی کے کچھ رسم و رواج ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے معصومیت سے اپنی گردن جھکا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادا سائیں مجھے معاف کر دیں، مگر میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا اور اب میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مہروز کل رات تمہارے لیے کھانا لے کر کمرے میں نہیں گیا تھا؟ اپنی ساس کی بات سن کر اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا اور نہیں کہا۔ دل ہی دل میں وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ کل رات مہروز نے کمرے میں کھانا منگوایا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا، اور پھر رات کے وقت جب مہروز سو گیا تو وہ برتن خاموشی سے کچن میں رکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ پھر کچن میں جا کر اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ ایک تو اسے مہروز پر غصہ بھی بہت تھا اور دوسرا اسے شدید کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مہروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ خالی ہو گیا۔ ماہم جانے من، میری بیگم کہاں ہو تم؟ اس نے 2-3 آوازیں دیں، لیکن جب اسے کوئی پکار سنائی نہ دی تو وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرہ اس وقت خالی تھا اور شیشے پر ایک چٹ لگی تھی جہاں لکھا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں، تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ ایک تو اس معصوم لڑکی کی معصوم سی شرارتیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اٹھا اور پھر 5 منٹ کے اندر فریش ہو کر نیچے پہنچ گیا۔ تب تک ماہم تمام شکایتیں لگا چکی تھی۔ خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، دادا سائی نے اونچی آواز میں چلاتے کہا۔ پہلے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا دادا سائی، صبح صبح کیوں چنگیز خان بنے ہوئے ہیں؟ اسد تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا بدتمیز ہو گیا؟ اپنے دادا سائی کے ساتھ مذاق کرتے سے ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہاری اور میری عمر میں فرق کتنا ہے؟ ہاں بتاؤ گے ذرا مجھے؟ دادا عمر تو صرف ہندسوں کا نام ہے، میں تو آپ کو اپنا پکا یار۔ یہ کہتے وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ رہا ہے۔ کیا تم اپنے گھر کے رسم و رواج بھول گئے ہو؟ اس نے ایک نظر ماہم کی طرف دیکھا جو بہت معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت ماہم کا راز فاش کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے نہایت عاجزی سے اپنے دادا سائی سے معافی مانگ لی۔ ماہم یہ دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ وہ پہلی جیت اپنے نام کر چکی ہے۔ شام کا وقت تھا، ماہم پوری حویلی میں گھوم رہی تھی۔ یہ حویلی اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے ہمیشہ سے اس طرح کی حویلیاں بہت پسند تھیں۔ ان کی اپنی حویلی پرانے طرز پہ بنی تھی، جبکہ یہ نئے طرز کے مطابق بنائی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ پیچھے ہی گھوڑوں کا استبل ہے اور ایک بہت بڑا میدان جہاں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔
उसे घोड़े पर बैठने का बचपन से ही बहुत शौक था। बगैर सोचे समझे उस नौकरानी के साथ वो वहाँ चली गई। जब उसने सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा तो बेकाबू होती भागती उस घोड़े के पास गई और प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो घोड़ा भी उससे मानूस हो। वहाँ खड़े आदमी से, जो कि घोड़ों की देखभाल के लिए रखा गया था, वो कहने लगी कि मुझे इस घोड़े के ऊपर बैठना है। माहम की बात सुन वो परेशान हुआ। बीबी जी, मैं साहब के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। उसने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो साहब को शिकायत लगा दूंगी तुम्हारी। माहम की बात सुन वो खौफज़दा हुआ। कहने लगा, ठीक है, अगर आपको वाकई घुड़सवारी करनी है तो फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये कहकर वो घोड़ा मैदान में ले आया। माहम पहले एक बार घोड़े पर चढ़ चुकी थी। अभी भी वो किसी न किसी तरह घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो ही गई थी। घोड़ा थोड़ी देर के लिए तो यूं ही टहलता रहा, लेकिन फिर बाद में उसे महसूस हुआ कि उस पर कोई सवार है और वो उसका साहब नहीं, कोई और है। वो आहिस्ता आहिस्ता काबू से बाहर होने लगा। पहले पहल तो माहम ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माहम माहम कहाँ पर हो? मैं रोज़ जो थोड़ी देर पहले डेरे से वापस आया था। माहम को पूरी हवेली में ढूंढने लगा। साहब, वो तो घुड़सवारी के लिए गई हैं। नौकरानी की बात सुन वो परेशान हुआ और बाहर की तरफ भागा। माहम कैसी हैं? उस वक्त उस मैदान में माहम की चीखें उस वक्त मैदान में गूंज रही थी। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे और फिर देखते ही देखते वो घोड़ा उस छोटे से मैदान से भी बाहर निकल गया। बीबी जी को घोड़े पर चढ़ने की इजाज़त किसने दी? महरोज़ ने इंतहाई गुस्से से सरमद से पूछा। माफ़ कीजिएगा साहब, वो ज़िद कर रही थी। मैंने उन्हें मना किया तो कहने लगी कि आपको शिकायत लगा देंगी। फ़िलहाल उससे बहस करने का वक्त नहीं था। महरोज़ तेज़ी से एक और घोड़े पर सवार हुआ और माहम के पीछे चल दिया। काफ़ी फासले पर जाकर उसे माहम मिल भी गई। अब वो घोड़ा एक ही जगह खड़ा था और माहम को अपने ऊपर से उतार कर नीचे फेंकने की कोशिशों में था। चिल्लाना बंद कर दो बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें चिल्लाने के अलावा और आता भी क्या है? और तुम्हारे चिल्लाने से गुस्सा आ रहा है? महरोज़ ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, मगर माहम ने बात नहीं सुनी उसकी। महरोज़ तेज़ी से उसके करीब पहुंचा। जैसे ही महरोज़ ने उस घोड़े के चेहरे को पकड़ा, उसके चेहरे पर हाथ रखा, घोड़ा एकदम नॉर्मल हो गया। वो अपने मालिक के लम्स को पहचान चुका था। महरोज़ ने उसे जल्दी से नीचे उतरने को कहा। माहम ने उतरने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, महरोज़ ने उसे थाम लिया। महरोज़ ने सबसे पहले घोड़े को करीब लगे दरख्त के साथ बांधा। माहम के पास आया तो माहम गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारने लगी और फिर उसके सीने पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महरोज़ उसके सर को थपक रहा था। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने इस घोड़े को कहा था ना कि मुझे तकलीफ़ पहुँचाए। माहम की बचकाना बातों पर उसे हंसी आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा हुआ था। दूसरी तरफ वो शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी बीवी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। उसे वैसे भी अंदाज़ा था कि वो घोड़ा उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ माहम को डरा रहा है और घोड़े को ये ट्रेनिंग महरोज़ की ही दी गई थी। बेगम, तुम्हें किसने कहा था यूं घोड़े पर सवारी करना शुरू कर दो? मैंने इसके बालों में हाथ फेरा था। इसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे यही लगा कि घोड़ा मुझसे प्यार करता है। माहम ने उसकी आंखों में देखते अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। महरोज़ के चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट फैली। उसने उसे अपने बाजुओं में समेटा और उठ खड़ा हुआ। माहम को जल्दी अंदाज़ा हुआ कि महरोज़ उसके साथ कुछ ज़्यादा फ्री हो रहा है। उसने महरोज़ के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन महरोज़ की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। इतनी कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। माहम अब गौर से महरोज़ के चेहरे को देख रही थी। उसे सबसे पहले उसने 2 साल पहले देखा था, जब वो अपने अब्बा के साथ उस गांव में आई थी। दरअसल ये एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ दो गांव बसते थे, लेकिन दोनों गांव आपस में एक लंबे अरसे से दुश्मनी का शिकार थे। दोनों में से कोई इस दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर पाया। दुश्मनी की बुनियाद बस एक गलत फहमी थी। असल में खानों का एक आदमी मारा गया था और उसका इल्ज़ाम लगारियों को दे रहे थे वो। लेकिन 2 साल पहले उन पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि ये काम किसी और का था, बल्कि उनके अपने ही लोगों का था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सुलह करने के लिए लगारियों के पास चले आए। यूँ दोनों गाँव एक दूसरे के पास आने जाने लगे। एक दिन माहम अपने कॉलेज से वापस आ रही थी। अचानक ही उसकी गाड़ी रुक गई। जब उसने ड्राइवर से पूछा तो सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी।
महरोज लगारी उस गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। शायद वो वहाँ खड़े कुछ तस्वीरें ले रहे थे। ये देखकर माहम को गुस्सा आया। उसने ड्राइवर को कहा कि जल्दी से जाकर इनसे कहे कि गाड़ी रास्ते से हटाएं। जब ड्राइवर उसे ये कहने के लिए गया तो दूसरी तरफ महरोज लगारी के माथे पर भी बल पड़े। उसे किसी का हुक्म मानने की आदत नहीं थी और ना ही वो किसी को इजाज़त देता था कि कोई उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात कहे। महरोज लगारी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। ए मिस्टर, अभी और इसी वक्त मेरे ड्राइवर का गिरेबान छोड़ो, वरना तुम्हें यहीं खेतों में दफन कर दूंगी मैं। लड़की की आवाज़ सुनकर उसने हैरत से माहम की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए उसको घूरे जा रही थी। और यही वो दिन था जब उसके दिल में माहम की मोहब्बत ने जन्म लिया। अरे अरे मैडम, इतना जुल्म मत कीजिएगा, ये देखे मैंने इसका गिरेबान छोड़ दिया। वो डरने की एक्टिंग करने लगा। माहम के माथे पर बल पड़े। वो इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानती थी। उसने महरोज लगारी को कहा कि अभी इसी वक्त अपनी गाड़ी सामने से हटा। जी जी, क्यों नहीं, आप सिर्फ एक हुक्म दीजिए। आपके हुक्म पर तो मैं कुछ भी करने आपके एक हुक्म पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जो कह रही हूँ सिर्फ वही करो। अरे अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूँ। महरोज लगारी ने एक आंख दबाते हुए कहा। और यही वो दिन था जब माहम के दिल में उसके लिए नफरत पैदा। उसे इस तरह के उबाश लड़के जहर लगते थे, जो कि लड़कियों पर लाइन मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। वो ये बात नहीं जानती थी कि महरोज अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की पर लाइन मार रहा है। महरोज के दोस्त हैरानगी से उसकी तरफ देख रहे थे। यार, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि थोड़ी देर पहले तो उस लड़की से इतने प्यार से बात कर रहा था। जुनैद ने माहम की गाड़ी को वहाँ से जाते देख कर कहा, अब उस लड़की को भाभी कहना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो लड़की मेरे दिल में घर कर चुकी है। और इतनी जल्दी कैसे तूने उस लड़की को अपने दिल में जगह दे दी? कामरान ने लुकमा लगाया। इतनी जल्दी कहाँ, पूरे 3 सेकंड लिए हैं मैंने। महरोज ने उसका चेहरा ज़हन में सोचते कहा। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि अब बस किसी भी तरह उससे माहम से निकाह करना है। महरोज लगारी एक इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का है बाबा। वो अब मुझसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी करने लगा है। मैं अब उसकी ये बदतमीज़ी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। माहम जैसे ही घर में दाखिल हुई, भाई की आवाज़ कानों में पड़ी। महरोज का नाम सुन उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले उस लड़के का चेहरा घूम गया। अच्छा, तो वो है महरोज लगारी। इसके साथ उसके दिल में उसके लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ी। उसने अपने भाई से ही सुन रखा था कि महरोज गरीबों की ज़रा भी इज्जत नहीं करता। जुल्म और सितम करना उसकी आदत है। इसी वजह से उसे महरोज से चिढ़ होने लगी। इसके बाद अगले दिन वो शहर चली गई। तकरीबन 6 महीने शहर गुजारने के बाद दोबारा गांव आई तो घर में उसका सामना महरोज से हुआ, जो अपने वालिद के साथ बैठा था। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। बेटा, जल्दी से अच्छे कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। ये लोग तुम्हारा रिश्ता देखने आए हैं। क्या मतलब है? कौन लोग मेरा रिश्ता देखने आए हैं? माहम ने हैरत से अपनी माँ से पूछा। बेटा, महरोज लगारी तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है, उसकी माँ ने जोश से बताया। लेकिन मैं उसे अपना शोहर नहीं बनाना चाहती। आप अभी इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार कर दें। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर तुम्हारे बाप को इस बारे में पता चला तो जान से मार डालेंगे तुम्हें। अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जानती हूँ मैं कि अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसकी बहन कमरे में चली आई। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो माहम? जल्दी से बाहर आओ। माहम ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो बाहर नहीं जाएगी। जब मेहमान वहाँ से चले गए तो दिलावर खान कमरे में आए। बेटा, क्या हमने तुम्हारी परवरिश ऐसे की है कि जब बड़े तुम्हें किसी काम को करने का कहें तुम उनके मुंह पे साफ इनकार कर दो? उन्होंने इंतहाई संजीदगी से अपनी बेटी से बात की। नहीं बाबा, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं। माहम, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। माहम के दिल में जो भी था उसने फ़ौरन से कह दिया। और इस शादी से इनकार की कोई ख़ास वजह? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बाबा, मैं जालिम लोगों से नफ़रत करती हूँ और महरोज लगारी एक बहुत जालिम इंसान है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं गुजारनी। और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की? उसने तुम्हें कभी तंग करने की कोशिश की या तुमने ये बात किसी गरीब के मुंह से सुनी? बाबा, मैंने ये भाई के मुंह से सुना। मुझे पता है कि वो एक छिछोरा इंसान है। मेरा सिर्फ एक ही बार सामना करने पर तुम इस तरह का अंदाज़ा नहीं लगा सकती मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारा रिश्ता उस इंसान के साथ तय कर दिया है। बहुत जल्द तुम्हारा उसके साथ निकाह हो जाएगा। बेहतर यही है कि अपने आप को ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार कर लो। और जहाँ तक तुम्हारे भाई का सवाल है,
तो मैं तुम्हें यही मशवरा देता हूँ कि अपने भाई की बातों पर यकीन ना ही करो तो अच्छा है। ये कहकर वो खामोशी से बाहर निकल गए। माहम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा उनसे कुछ कह सकती। वो अच्छी तरह जानती थी, जब बाबा एक बार कोई फैसला कर लेते तो उस पर डट जाते थे। कोई भी कितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो दिलावर खान को अपने फैसले से नहीं हटा सकता था। और ज़ुबान के मामले में वैसे भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो। और अब माहम का बस नहीं चल रहा था कि वो महरोज़ लगारी को इस दुनिया से मिटा दे हमेशा हमेशा के लिए। शाम के वक्त वो बैठी हुई थी कि उसका भाई उसके करीब जाकर बैठ गया। मुझे पता चला है कि तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो। दुराब की बात सुनकर उसने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं मजबूर थी। तुम मजबूर नहीं हो, बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुम बाबा को इनकार कर दो तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। दुराब लाला, क्या आपको लगता है कि मैं बाबा को मना नहीं कर चुकी? मैंने मना किया था, मगर वो ज़ुबान दे चुके हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो अपनी ज़ुबान के मामले में किसी की भी नहीं सुनते। माहम, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बचाना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम उस जैसे इंसान के साथ कभी गुजारा नहीं कर पाओगी और सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैं ये रिश्ता ना होने की कोशिश में लगा हुआ था। अभी कल ही उसने 2 गरीबों के खेतों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ तस्वीरें बनाने गया था, लेकिन बदले में उसने सारे खेत तबाह करके छोड़ दिए। तो रात की बात सुनकर माहम की आंखों में आंसू आए। रात वो अपने बिस्तर पर लेटी इसी बारे में सोचती रही कि कैसे उस इंसान के साथ गुजारा करेगी। दूसरी तरफ दुराब अब सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में छुपी नफ़रत को बाहर निकालने के तरीके ढूंढ रहा था। वो महरोज़ लगारी से बहुत नफ़रत करता था, क्योंकि जब से महरोज़ लगारी पढ़ लिख कर वापस आया था, तब से सारी चीज़ें उसके हाथों से बिल्कुल निकल गई थी। जिन कामों का ज़िम्मेदार वो महरोज़ लगारी को ठहरा रहा था, वो काम उसने खुद किए थे। गरीबों को तकलीफ़ पहुंचाना, गरीबों की बेटियों के साथ बदतमीज़ी करना, ये सब हरकतें दुराब की थीं। महरोज़ लगारी तो उसे इन हरकतों से मना करता था। दिलावर खान पहले यही समझते थे कि महरोज़ ही ख़राब है, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे को एक गरीब की बेटी के साथ बदतमीज़ी करते देखा तो सारी हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने दुराब को माहम से बातें करते भी सुन लिया था, जहां वो माहम के दिल में सिर्फ और सिर्फ महरोज़ लगारी के खिलाफ नफ़रत डाल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि दोनों बहन भाई एक दूसरे से नफ़रत करने लगे या दोनों में फूट पड़े। इसी वजह से उन्होंने माहम को दुराब के बारे में नहीं बताया। अपने तजर्बे के मुताबिक उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि महरोज़ बहुत जल्द ही माहम के दिल में घर कर लेगा और बहुत जल्द माहम को यह एहसास हो जाएगा कि महरोज़ वैसा ही शख्स है जैसा उसने अपने बारे में अपने लिए सोचा था। अभी माहम ने सिर्फ और सिर्फ सब्र करना था। वहाँ हमने अपने घर वालों से 1 साल का वक्त मांगा और फिर 1 साल बाद ही उसकी महरोज़ के साथ शादी हो गई। शादी के दिन वो बहुत गुस्से में थी। महरोज़ ने इंतहाई खूबसूरती से उसके गुस्से को दोबाला किया। हाल तुम्हारे साथ कहाँ पर है? तुम्हारे साहब कहाँ पर हैं? मुझे नज़र नहीं आ रहे। माहम ने सुबह से महरोज़ को नहीं देखा था। ना चाहते हुए भी नौकरानी से पूछ गए। जी साहब तो लेडी डॉक्टर को लेने गए। क्या उन्होंने आपको इस बारे में नहीं बताया? माहम का दिल तेज़ी से धड़का। वो बेचैनी से पूछने लगी कि कौन सी लेडी डॉक्टर? क्या वो तुम्हारे साहब की कोई दोस्त है या वो तुम्हारे साहब की जानने वाली? उनकी रिश्तेदार तो नहीं? उसने एक ही सांस में इतने सारे सवालात पूछ डाले। उसकी नौकरानी सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साहब की कोई भी लड़की दोस्त नहीं। उन्होंने गांव में एक डिस्पेंसरी खोली है जिसके लिए उन्होंने कल ही सामान मंगवाया था, लेकिन वहां पर एक लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। उन्होंने सरकार से बात की तो सरकार ने 1 महीने बाद यहाँ लेडी डॉक्टर भेज दी। अच्छा, तो वैसी बात है। वैसे तुम्हारे साहब इतने अच्छे काम भी करते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक महरोज़ कमरे में दाखिल हुआ। कल तुम तैयार रहना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाना। मैं उस लेडी डॉक्टर से तो हरगिज़ भी नहीं मिलूंगी। पहले महरोज़ ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। वो बोला, मतलब अभी से मेरी जासूसियाँ शुरू हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, वहाँ पर जाकर तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो साइड पर बैठ गया
پھر اس نے ماہم سے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹوں کی آواز ماہم کو سنائی دی۔ ماہم جو سوچ کر بیٹھی تھی کہ اس سے لڑائی کرے گی، مایوس ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ اس کے ساتھ وہاں گئی تو دیکھ حیران ہوئی کہ سب گاؤں والوں کی زبان پر صرف مہروز کا نام تھا۔ سبھی اس کے لیے شکر گزار تھے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی مسکراتے مہروز کو ہی دیکھے چلے جا رہی تھی۔ ماہم نے مہروز کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ اسے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چند دنوں بعد وہ اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ تب ماہم کو پتہ چلا وہ بچیوں کے لیے ایک اسکول بنا رہا تھا اس گاؤں میں لڑکوں کے لیے تو اسکول تھا، لیکن لڑکیوں کے لیے پڑھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ماہم کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے بارے میں جو بھی سن رکھا تھا، یعنی وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب اس کے دل میں مہروز کے لیے جو نفرت تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس نے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر مہروز پر شک کیا تھا جنہیں اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے صرف اور صرف اپنے بھائی سے سنا تھا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ ڈیرے پر جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ اچانک مہروز نے راستے میں گاڑی روک دی۔ اس نے مہروز سے پوچھا کہ گاڑی کیوں روکی، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اسے لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوراب خان کسی لڑکے کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی کھیتوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہروز لگاری تیزی سے اس کے سر پر پہنچا اور لڑکی کا بازو چھڑوایا۔ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے کا، ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی؟ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے اس پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں دوراب کی حالت خراب ہوئی۔ ماہم نے ایک بار بھی مہروز کو نہیں روکا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، تمہیں اپنا بھائی کہتے، اس سے تو اچھا تھا تم پیدا ہوتے ہی نہ۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک نیک انسان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اس اچھے دل کے مالک انسان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی۔ میں ساری عمر تمہاری وجہ سے اب پچھتاتی رہوں گی۔ وہ دوراب کو مارنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مہروز نے دوراب کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ماہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، معافی مانگتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے آپ پر اس حد تک شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی مجھے آپ سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے بھائی نے مجھے جو کچھ بتایا میں آنکھیں بند کر کے مانتی چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی دنیا کا سب سے اچھا اور سچا انسان ہے۔ مہروز نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولا، تم نے جو کچھ بھی کیا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنی آنکھوں سے جلدی سے آنسو صاف کرو۔ میری شیرنی روتے ہوئے بالکل بھی پیاری نہیں لگتی۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ تھا۔ مسکراتے ہوئے مہروز نے اس کا ماتھا چوم لیا، اور پھر ماہم نے اپنی خوشی سے خود کو مہروز کے حوالے کیا۔ چاند دونوں کے اس ملن پر شرما اٹھا۔